in your can come in your theory exam, or what questions can be asked from you. Those you should be prepared. Okay. So should we start now? Should I start, or are we waiting for a Yes, few ma'am. more? Okay, I'll start then. Right. Okay. So now uh, so the questions which have come in your past theory papers, I will keep telling them to you in between as we are going through. Okay, so please be attentive. Okay, so now Pooja, what is labor? Like, what do you understand by labor? Batao. Uh, in the start of the uterine contractions in the female, फिर uh, वो labor होता है. the starting of the uterine contractions in a continuous and regular. Anybody else? Poonam, what Uh, is labor? Good afternoon, ma'am. Uh-huh. Ma'am, labor is a process of delivering a fetus, ma'am, and it has been divided into three stages, ma'am. Stage one, stage two, stage three. Stage one is the it starts from the uterine contraction to fully cervical dilation, and ma'am, it has been further divided into latent and active stage, ma'am. बेटा पहले तो when you are talking ना, when you say कि instead of just saying it is the process of delivering the baby or fetus, you should say basically it is labor is onset of organized regular uterine contractions which result in progressive cervical dilatation and effacement with resultant there is for delivery of baby through the birth canal, for passage of baby fetus through birth canal. अच्छा अब ऐसा करो. Now do one thing, all of you, what all questions I'm asking you now, you just note them down. See, you may not remember the answer right now, but question लिख लो, उसको बाद में अपने आप उसको उसका आंसर फाइंड आउट करके लर्न इट. ठीक है, इट इज गिवन इन योर मिलर ऑल्सो. सो व्हाट इज लेबर, यू कैन बी आस्क्ड. कभी भी कोई पूछे लेबर एनर्जीजिया बात लेबर है, आपको लेबर की ही डेफिनेशन नहीं आती तो फिर थोड़ा सा इट विल नॉट पुट यू इन द राइट प्लेस. ठीक है. ओके देन वर्षा, tell me about the stages of labor. How many stages of labor are there, and tell me how you differentiate them. Ma'am, there are three stages of labor. First stage is the stage of progressive cervical dilatation, latent phase and active phase. Latent phase is till 4 centimeter, and from 4 to 10 centimeter is the active phase of labor. Then comes the second stage of labor from full अच्छा, cervical इसमें dilatation. बेटा वर्षा एक मिनट बेटा, इसमें आई विल लाइक टू टेल यू कि जैसे स्टेज वन बोलोगे, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस with along with cervical changes that happen, right? So stage 1 is from beginning of painful uterine contractions to complete cervical dilatation to 10 centimeters. अच्छा, अब इसके अंदर जो आपने दो डिविजन्स बोले थे ना, लेटेंट और एक्टिव फेज, उसमें आपकी जो लेटेस्ट मिलर है 9th एडिशन, उसके अंदर बच्चे ये लिखा हुआ है कि traditionally the transition point from latent to active phase of labor was 4 centimeter dilatation from where active stage begins. But अब वो जो है there is a new curve और transition point 6 centimeters को कहते हैं फ्रॉम लेटेंट टू एक्टिव फेज. ये आप देखो आपकी मिलर में है मेरे ख्याल से पेज नंबर 2013 लिख लो. आई थिंक 2013 पेज है, मैंने ऐसे साइड में लिख रखा है, पर ये आपके मिलर में है. ठीक है, जो लेटेस्ट मिलर है उसमें पॉइंट दिया हुआ है कि वैसे पहले 4 सेंटीमीटर था ट्रेडिशनली, पर अब जो न्यू कर्व है उसके अकॉर्डिंगली इट इज 6 सेंटीमीटर्स इज द ट्रांजिशन फ्रॉम लेटेंट टू एक्टिव फेज. ठीक है, तो Yes, ma'am. just check on that. All right, then
then what is the second stage? Ma'am, second stage begins from full cervical dilatation to the delivery of fetus. And Okay. third stage includes the delivery of placenta. Yeah. Okay. So, so these are the three stages of labor. Now, when you're talking about labor, somebody can even ask you what is abnormal labor or dystocia. So, Venkatesh, do you know what is abnormal labor? Hmm? वेंकटेश बेटा क्या हो गया पता नहीं पता तो बोल दो मैम वी डोंट नो सी ओवर हियर प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट रिमेंबर अपने माइंड में रखो कि दिस क्लास इज अ ट्यूटोरियल ओवर हियर वी आर सिटिंग विद ईच अदर नॉट टू इंटिमिडेट ईच अदर not to mock each other, okay? In case we do not know anything, let us be brave and say ma'am nahi pata, so somebody else can try. Usko bhi nahi pata hoga to I am here to tell you and help you, so there's no need to feel एकदम बोल दो. So वेंकटेश बताओ बच्चे, do you know what is abnormal labor? He is not there. वेंकटेश चौधरी, मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी. वेंकटेश, मान्या, तुम बताओ. मान्या, ये Yes, सब ma'am. हाँ बताओ व्हाट इज एबनॉर्मल लेबर बेटा. Ma'am, abnormal labor is when the uterine contractions are not taking place at regular intervals at the required magnitude to progress to the second stage. बेटा इस तरह से ना बोल करके हम ऐसे बोलेंगे कि अगर हमारा जो लेट एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा लेटेंट फेज ऑफ लेबर होता है और उसके बाद हमारा एक्टिव फेज होता है. एक्टिव फेज अराउंड 10 to 12 आवर्स तक रहता है. तो अगर किसी का जो लेबर है इट गेट्स अरेस्टेड इन द एक्टिव फेज और देयर इज एन एबनॉर्मल लेटेंट फेज और देयर इज एन अरेस्ट इन डिसेंट. जैसे अगर सपोज करो सिचुएशंस की एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है बच्चे की, शोल्डर डिस्टॉर्शिया है या ट्रांसवर्स लाई है, तो इट विल नॉट प्रोग्रेस ना, वो अरेस्ट ही हो जाएगा एक्टिव फेज में क्योंकि उसकी पोजीशन ही नहीं है. या फिर पेल्विक और सर्वाइकल डिस्प्रोपोर्शन है, बच्चे का हेड बड़ा है, पेल्विस छोटा है मदर का, वो अंदर ही नहीं जा रहा है. ठीक है. सो दीज आर कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल लेबर. Now why I am telling you this is that कभी भी वाइवा में इस तरह से हो जाता है. अच्छा बेटा व्हाट इज लेबर. अच्छा लेबर ही है. अच्छा तो एबनॉर्मल लेबर क्या है. दे कैन आस्क यू लाइक दिस. तो रिलेटेड टर्म्स जो होती है ना वो तुमको पता होनी चाहिए एंड इट्स दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, है ना. सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज एबनॉर्मल लेबर Yes. एंड व्हाई इट इज ड्यू टू. Yes, ma'am. बताओ क्यों होता है एबनॉर्मल लेबर. एग्जांपल बताओ. Ma'am, large एक head तो of the fetus, shoulder dystocia. हाँ, जैसे कोई एबनॉर्मल फीटल पोजीशन है, ठीक है, यू कैन से एबनॉर्मल फीटल पोजीशन हो गया, इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो गई. चलो फीटल पोजीशन भी एडिक्वेट है बट कॉन्ट्रैक्शंस इनएडिक्वेट हैं. दूसरा फीटल पोजीशन ही एबनॉर्मल है और तीसरा मिसमैच है बिटवीन द फीटस एंड द पेल्विक साइज. ठीक है. So these are the Yes, three ma'am. major causes of abnormal labor or dystocia. All right. So now निवेदिता, अच्छा बताओ बेटा, why do you think is labor analgesia important? Why do you want to, why are we even having this topic on labor analgesia? Why is it Hello, important? ma'am. Good afternoon, ma'am. हाँ, good afternoon. बताओ. Labor analgesia is important because labor is a lengthy process, and labor is a lengthy process, ma'am, where the contractions are very painful, and also the thing is, mother should have the good feeling about labor process rather than they should she shouldn't be remembering the bad part of pain and all, ma'am. And in some cases where patient cannot tolerate pain, Mm-hmm. uh,
Like in बस cases अब of where अच्छा ठीक है I got it. चलो Arjun, can you say it better? Why is labor pain important? Labor anesthesia important? Ma'am, labor anesthesia is important because we should know how to manage the labor anesthesia and in what stage, what requires to be done in that particular stage. For example, like in first stage of labor, it is basically due to the sympathetic overactivity and due to 10 to L1 level of spinal cord. The other hand, in the second stage, it is mainly due to the अच्छा देखो, अगर तो अर्जुन इसका आंसर ऐसे नहीं देंगे जैसे इसने पहला पॉइंट Also, तो ma'am, ठीक बोला था कि व्हाई इज fetus- एनाल्जेसिया इम्पोर्टेंट, लेबर एनाल्जेसिया क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, नंबर वन, बिकॉज शी सेड दैट see, it is human right to provide pain relief. Labor is an extremely painful situation, right? Yes, ma'am. A woman in labor goes through an extremely painful period, and it is humanitarian that you should consider providing her pain relief. Number one. Yes, ma'am. ठीक है? Maternal factors would be And second point which she nicely said was that she should not associate it with an unpleasant memory. yes. She should have pleasant this thing association of the entire childbirth process. Okay. Yes, ma'am. Then what else? And ma'am, other than that, while the mother is feeling the pain, she will also hyperventilate, and Very good. which could lead to respiratory alkalosis and also leftward shift of the ODC, which is normally is on the right in a pregnant female, and which could also lead नहीं to नहीं बेटा, ये hypoxia. क्या बात हुई? अभी तो इतना अच्छे से बता रहा था. देखो, सबसे पहले तो ओडीसी मत बोलना. सी, आई एम ट्राइंग टू ट्रेन यू फॉर गिविंग योर एग्जाम्स आल्सो. आदत Yes. मत डालो अपनी गंदी. ऑक्सीजन Right. डिसोसिएशन कर्व बोलो. और अभी तुमने अच्छे से बोला कि पेन कॉजेस, ड्यू टू पेन अ वुमन विल हाइपरवेंटिलेट. हाइपरवेंटिलेशन विल कॉज अ शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब तुमने उसके बाद ये पॉइंट बोला कि नॉर्मली इट इज ऑन द राइट. नहीं, कोई राइट लेफ्ट थोड़ी है, वो तो जहाँ है वो जिधर मूव कर रहा है उधर से उधर, तो आप बोलोगे एवरीथिंग इज यू नो, Yes, ma'am. है ना? हाँ, तो बताओ अब. तो इट विल कॉज नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट एल्स? Ma'am, other than that, it will also lead to अच्छा, शिफ्ट हो गया लेफ्ट को तो क्या होगा? लेफ्ट को it will basically lead to decreased unloading of oxygen to the fetus. ओके, वेरी गुड. And और क्या पॉइंट्स हैं? ma'am, fetal acidosis, which causes फीटल एसिडोसिस क्यों होगा? ma'am, because of the same thing, because of the leftward shift of oxygen dissociation curve, there will be less oxygen delivered to the fetus, which would lead to an acidotic side in the fetus, and also the various drugs that we are giving, the metabolism of those drugs would be hampered. क्या और कुछ बताओ? Ma'am, there will be a lot of catecholamine release in the हाँ, mother, which could lead to हाँ, हाँ. further uteroplacental compromise, blood flow. वेरी And गुड. also, तो सबसे पहले तो तुम ये बोलो ना, पेन से क्या होता है? पेन से क्या होता है? इट कॉजेज रिलीज ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इंटेंस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स, राइट? मैटरनल हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, yes, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, साथ ही साथ यूट्राइन वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, यूट्राइन ब्लड फ्लो हैम्पर होगा, फीटल हाइपोक्सिया होगा, yes, ma'am. है ना? इसीलिए फीटस को एसिडोसिस हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. हाँ. और दूसरा जो आपने मैटरनल हाइपरवेंटिलेशन बोला था, तो मदर हाइपरवेंटिलेट करती है और इन बिटवीन हाइपरवेंटिलेशन देयर आर फेजेस There ऑफ is also hypoventilation हाँ, तो के उससे भी भी क्या होता है? episode which will lead to hypoxemia in the fetus. हाँ, वेरी गुड. वर्षा, एनी अदर पॉइंट? वर्षा, और कुछ ऐड करेंगे?
अभी जो पॉइंट्स हुए उनमें और कुछ मिस किया बताओ। वर्षा, स्वीटी। Yes, ma'am. हाँ वर्षा बताओ। Yes, ma'am. और कोई पॉइंट बताओ, क्या व्हाट वाई लेबर पेन से और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? Hello, ma'am. Your voice is not audible. Can you please repeat the question? बेटा अर्जुन ने अभी कुछ पॉइंट्स बताए हैं और आप बताओगे बाकी और क्या रीजंस हैं लेबर पेन से, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मदर मटर्नल, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो हमें एनाल्जेसिया देना चाहिए? Excess it's not relieved during labor, then the patient can have a PTSD and नहीं आई डिडंट गेट इट, क्या बोल रहे हो? ma'am, post-traumatic stress disorder can happen if the anxiety and the pain is not relieved at the time of labor. ओके, व्हाट एल्स? And ma'am, excess sympathetic stimulation can cause uterine artery vasoconstriction, leading to decrease in uterine blood flow and fetal acidosis and decrease in fetal decreased oxygen delivery to the fetus. So what is the effect of epinephrine? और ये catecholamines में epinephrine release होता है ना? Yes, So ma'am. what does epinephrine do to uterine contraction? Ma'am, it makes the uterine contractions irregular. It can lead to increased chances of dystocia. The uterine Irregular मतलब मुझे बताओ, does it promote contraction or decreases contractions, क्या करता है? it can lead to hypertonus uterus, which will decrease the blood flow to the fetus. नहीं बेटा, epinephrine is tocolytic, ठीक है? Yes, ma'am. So, Then the what uterine it is, by providing labor analgesia, we are converting abnormal to a normal uterine contractions, ठीक है? So it helps in the progress of labor by providing analgesia also, ठीक है? और बाकी आई थिंक हमने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, उनमें एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ये हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है, इट कॉजेज maternal hyperglycemia also, pain causes maternal hyperglycemia. Besides gastric acidity and volume, gastrin रिलीज करता है ना, तो gastric acidity and gastric volume बढ़ जाती है, plus bladder emptying में डिले होता है. So these are the basically some of the things which labor pain is causing, and so labor analgesia also helps in doing away these physiological changes, you know. तो अब आपका एक क्वेश्चन है 10 मार्कर. Question is, discuss the physiological changes secondary to pain in labor. ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है? Yes, ma'am. Discuss the physiological changes secondary to pain in labor. तो इसमें या वाई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप एनाल्जेसिया के बारे में क्यों सोच रहे हो, या physiological changes, so answer turns out to be the same, but you have to know that this is a very important question and you must prepare yourself with this question. तो जो भी मैं ट्यूटोरियल में प्लीज क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना, आप बस क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ताकि आप लोग बेटा बाद में उनको जरूर रेफर कर लो, क्योंकि ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है और इसके अंदर बड़े सेट क्वेश्चंस हैं, कुछ और नहीं आना जाना इधर उधर से, जो ये कर लिया तो कर लिया, ठीक है? So just do that, right? Then okay, next okay, next question which is important is आता है आपको, draw a labeled diagram of labor pain pathway. Describe method, advantages, disadvantages of preferred techniques of labor analgesia. ठीक है, ये भी एक 10 मार्कर है जिसमें 4 मार्क्स सिर्फ डायग्राम बनाने के हैं लेबर पेन पाथवे के.
और बाकी 2-2 मार्क्स है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्निक्स के। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मेरे को पेन पाथवेज कौन बताएगा? स्वीटी आप बताओगे? विल यू टेल मी द अबाउट द लेबर पेन पाथवेज? स्वीटी पांडे, क्या हुआ बेटा, कहाँ हो? हाँ स्वीटी बताओ, आई कांट हेयर यू। हेलो। हाँ स्वीटी बोलो। हेलो। हेलो, बोलो बोलो। Among the factors, the glucose and the service enter the spinal cord at T10 to 11 levels. On the lobe of vagina, pain and बेटा सुनाई नहीं दे रहा, क्लियरली बोलो और थोड़ा ऊंचा बोलो। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करो पहले, फिर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करो। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पेन पाथवेज तो बोलो इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लोअर यूट्राइन सेगमेंट और सर्वाइकल स्ट्रेचिंग होती है, तो उसका जो मैकेनो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं ना स्ट्रेचिंग से, तो दैट नॉक्शियस इंपल्स गोज वाया दीज फाइबर्स देयर, ऐसे करके बताओ। During the first stage of labor, there will be dilatation of the cervix and the tension of the lower uterine segment, which will lead to dilating and poorly localized pain, and it will be a slow conducting by the C fibers. This will enter the spinal cord at T10 to L1 levels. Okay. Through paracervical ganglia and hypogastric plexus, lumbar sympathetic chain से enter करते हैं T10 L1 पे. And what kind of a pain is in there in first stage? Ma'am, it's a slow conducting, dilating, poorly localized pain. हाँ, it is a visceral pain. Mainly it is a pain is visceral. ठीक है, फिर second stage में? The second stage of labor, there will be further the tension of the pelvic floor, vagina, and the perineum, which will lead to a sharp, severe, and well-defined, well-localized pain, ma'am. And ma'am, this will be conducted by the A delta fiber and enter the spinal cord at S2 to S4 level. Okay, and this is a somatic pain, ठीक है? और impulses कहाँ से travel करती हैं? Pudendal nerve से, है ना? Okay. तो अब अगर आप मुझे बताओ what is Ferguson reflex, कौन बताएगा? पल्लवी, Ferguson reflex क्या होता है? Yes, ma'am. What is Ferguson reflex? ये क्वेश्चन भी प्लीज लिख लीजिए, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है। I don't know Ferguson. ओके, पंकज, यू नो व्हाट इज फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स? बेटा देखो ऐसा होता, हाँ पंकज बताओ, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स पता है आपको? मैम डोंट नो मैम, इज आई थिंक न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स। वो तो तुमने अभी गूगल करके देख लिया न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, पर है क्या? मैम पता नहीं मैम। हाँ वही ना, सिर्फ इतना ही पढ़ पाया इतनी जल्दी में, यही प्रॉब्लम है। आरुषि सैली, आरुषि, हाँ क्या है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स बेटा? अच्छा प्लीज ये ना लिख लो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, ठीक है, नोट करो। बेसिकली मतलब सिर्फ फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स लिखना, बाद में तुम पढ़ोगे इसको, ठीक है। ऐसा होता है कि जब बच्चे का फीटस के हेड का जब प्रेशर पड़ता है ना बेटा सर्विक्स और वजाइनल वॉल पे, जब बच्चे का सेकेंड स्टेज में जब डिसेंट कर रहा होता है, तो वजाइनल वॉल वगैरह पे जब उसका बच्चे के हेड से स्ट्रेच होता है ना, तो उससे क्या होता है, ये ना एक पॉजिटिव फीडबैक काइंड ऑफ मैकेनिज्म है कि उस स्ट्रेच होने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और वो रिलीज होने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, फिर वो और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ताकि एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, विच इज इनिशिएटेड बाय द प्रेशर एट द सर्विक्स एंड वजाइनल वॉल। तो एक
बच्चे का जो हेड है उससे जो प्रेशर पड़ता है सर्विक्स और वजाइनल वॉल पे, उससे एक ये सेल्फ सस्टेनिंग कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल शुरू हो जाती है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो फर्दर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक ये पॉजिटिव फीडबैक करके है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि यदि आप अर्ली लेबर में ही आप S2, S3, S4 को ब्लॉक कर दो, तो जो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स होता है ना, जब कि फर्दर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो वगैरह, तो वो भी ब्लॉक हो जाता है, तो वो होता नहीं है, तो इसलिए लेबर जो है आपका डिले हो जाता है। एंड मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझे कि नहीं? नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। यस मैम, समझ में आ गया मैम। तो अब ये पढ़ोगे दोबारा से, ठीक है? ये फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, देन ओके, सो बसवराज, तुम बताओ बेटा, तुम ये लेबर एनाल्जेसिया भाई, अर्ली टाइम्स में तो ऐसा होता था कि लेबर पेन तो डिसाइडेड ही था कि ये तो लेडी को भोगना ही है, there is no way out, you have to suffer this pain, and it was considered that it is very natural that you have to suffer and you should not give any analgesia. So what event happened in the history after which there was जिसके बाद there was popularization of pain relief in labor? बताओ। हेलो मैम। हाँ बताओ बसवराज, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो। हाँ मैम, in 1847 मैम when सिम्पसन ने ईथर और क्लोरोफॉर्म डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके बाद बट जॉन स्नो ने एडमिनिस्टर किया टू द क्वीन विक्टोरिया फॉर द 8th चाइल्ड बर्थ में, देन लेबर एनाल्जेसिया। वेरी गुड, वेरी गुड। 1853 में जब जॉन स्नो ने क्लोरोफॉर्म दिया टू क्वीन विक्टोरिया फॉर बर्थ ऑफ प्रिंस लियोपोल्ड, वाज द 8th चाइल्ड, तो thereafter there was this popularization of analgesia for labor। अच्छा, ये भी ना देखो, ऐसा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ याद रहे ना रहे, पर ये जॉन स्नो और ये क्वीन विक्टोरिया को लेबर एनाल्जेसिया क्लोरोफॉर्म देना, ये प्लीज़ ये ज़रूर याद रखना। इस ट्यूटोरियल में मैं कुछ भी चीज़ तुमसे, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग विच कैन नॉट बी आस्क्ड, ओके? I'm making sure that whatever comes to the examiner's mind or can come, I'm trying to ask those questions to you so that you are well prepared, okay? So just know this much, this important historic event you should know, okay? So now who is going to, एक second, ये एलसी कौन है? ये कौन है एलसी? ललित कुमार। अच्छा जी ललित, अब बेटा आप बताइए मेरे को, हाउ विल यू क्लासिफाई लेबर एनाल्जेसिया मेथड्स ऑफ और मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर एनाल्जेसिया? Ma'am, there are 4 kinds of methods. Like first of all, non-pharmacological method. अच्छा एक मिनट ललित, एक मिनट में यहाँ इंटरप्ट करूंगी। कभी भी बेटा वाइवा में ना ऐसे मत शुरू करो, देयर आर 4 मेथड्स। अरे यार सपोज करो 4 ही हैं, ठीक है, पर जब तुम बताने लगे तुम अचानक से चौथा भूल गए नर्वसनेस में, फिर वो एग्जामिनर तो पीछे ही पड़ जाएगा। हाँ भाई फोर्थ बताओ, और वरना चाहे तुमने 1 2 3 ही बताए तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो कभी भी ये 1 2 3 4 ऐसे मत बोलो, वरना तुम यू विल गेट कॉट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है? सो नाउ टेल मी अगेन। It can be classified as non-pharmacological method, pharmacological method. वेरी गुड। Inhalational analgesia. नहीं, अब आप ऐसे नहीं बोलोगे। अब आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया कि लेबर एनाल्जेसिया मेथड्स, दे कैन बी ईदर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स और दे कैन बी फार्माकोलॉजिकल मेथड्स।
Now tell me, now you will name all the methods which come under the non-pharmacological. Batao. Ma'am, it includes ma'am the psychoprophylaxis methods like Okay. hypnosis and Bradley methods and ma'am Lame's क्या? approach. Ma'am Bradley methods and और Lame's approach. बताते जाओ, बहुत सारे हैं. Ma'am relaxation techniques, use of audio tape, therapy, and yoga, Hmm. water immersion method. Hmm. And that's all I know in non-pharmaceutical methods. अच्छा, बाकी लोग बताएंगे, बहुत सारे हैं. ये पीपी कौन है भाई? पीपी पल्लवी. पल्लवी, आप बताओ बेटा. Yes, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स की लिस्ट बताओ. There are various methods. Non-pharmacological methods, we can go for emotional support, touch and massage, aromatherapy, hydration therapy, therapeutic use of hot and cold, and it can be TENS, electric nerve stimulation. It could be acupuncture, hypnosis, sedation, intradermal water injection, and aromatherapy. और कुछ? और कुछ? Vertical positioning. एक ना आपके सीनियर बैच में एक लड़के ने, जोसेफ ने, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें उसको कोई प्राइज वाइज भी मिला है ना, उसका पेपर भी छपा है. क्या किया? काफ़ी हमने उसको अप्रिशिएट किया. एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया में उसने पेपर छापा अपनी थीसिस का. उसको वहाँ के अब्रॉड में पीजी असेंबली में भी उसको 3rd प्राइज मिला. किस चीज़ पे किया? वेरी गुड. वर्चुअल रियलिटी फॉर पेन रिलीफ. there are even these distraction helmets होते हैं जिसमें टोटली कट ऑफ कर देते हैं एक्सट्रेनियस साउंड्स और बस प्लेजेंट इमेजेस दिख रही हैं, तो तुमको ये एक तरह का एक डिस्ट्रैक्शन थेरेपी होता है. ऑडियो विजुअल तुमको बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेस एंड यू आर ब्रॉट इनटू दिस. तो एक ना ये वर्चुअल रियलिटी पे भी आई वाज जस्ट सीइंग कि कुछ ना रोल ऑफ वर्चुअल रियलिटी फॉर लेबर एनाल्जेसिया या ऐसे ना इस तरह के भी कुछ आर्टिकल्स आए हैं. तो हो सकता है कि वर्चुअल रियलिटी पे आपको कोई somehow somebody can ask you, or you can एक कभी कोई शॉर्ट नोट आए या उसमें you can put a short, write it also on virtual reality. तो एक बार ये virtual reality का concept भी ना जोसेफ से समझना, देख लेना, ठीक है? ये भी एक important thing है. See, my point of taking this tutorial is that I want to sensitize you to anything and everything which can possibly be asked you in this on this topic. Okay? थोड़ा आसपास का दाएं बाएं का भी पूछ लेते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए. और डिस्ट्रैक्शन हेलमेट्स वगैरह क्या होते हैं. अच्छा, जब हम नॉन फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमने मेथड्स की, तो उसमें एक एजुकेशन वाली बात भी की थी, और दूसरा ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, तो आपने लमाज लबॉयर अप्रोच बता दिया. ये इमोशनल सपोर्ट के बारे में क्या है? ये इमोशनल सपोर्ट कैसे दे रहे हैं? Emotional support, there can be some person who she trusts to be around at the time of childbirth so that she feels more secure and comfortable. It could be any elderly lady who have had multi-para, or any of her reliable, trustworthy source, preferably a female who has also experienced the same childbirth in the past. That would give her moral encouragement and emotional support that she would be able to bear the pain and have a healthy child. Okay, so do you know what is doulas? What are doulas?
that the husband would be around the दूल्हा नहीं कह रही हूँ female while बेटा, दूल्हा नहीं कह रही हूँ. I'm saying doulas, doulas. Husband या बाढ़ में doulas बताओ. You know what is dies doulas? or these are some guys or some other person who's efficient in training and labor. बेटा Those देखो, people हाँ will- ठीक है, वेरी गुड. एक ना ये जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने WHO ने भी 2018 में अपना ये निकाला है. आई टेल यू, वो क्या है इसका WHO का, यू शुड नो. हाँ, रिकमेंडेशन निकाला है 2018 में WHO ने फॉर पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस. और उसमें उन्होंने यही सबसे बड़ा पॉइंट यही डाला है कि कंपेनियन ऑफ चॉइस इज रिकमेंडेड फॉर विमेन थ्रू आउट द लेबर एंड चाइल्ड बर्थ. और वो कंपेनियन ऑफ चॉइस उसकी मम्मी हो सकती है, उसकी सिस्टर हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसकी फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या डूलास हो सकते हैं. डूलास बेसिकली, डूला इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड for which means a slave, servant, a woman servant. Okay, so basically these are people who they have nothing to do with they are not a part of healthcare facility या कोई professional नहीं होते हैं, but yes they are there to support. वही जो आप बता रहे थे पहले, उसी को doulas बोलते हैं. They are women slaves which are who are there just to provide दिस थिंग. तो ये हमारा 2018 में WHO का रिकमेंडेशन है. सबसे इम्पोर्टेंट, इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियन, टू अलाउ अ कंपेनियन. ठीक है. सो ऑलराइट देन, फाइन. सो अब ये MG कौन है? MG मान्या से तो मैंने पूछ लिया. Yes, आर के नहीं, तुझे नहीं, तेरी बारी हो गई. रोहन. यस मैम. हाँ बेटा, उठ जाओ. अब बताओ, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स तो हो गए. अच्छा, नॉन फार्माकोलॉजिकल्स में मसाज थेरेपी वगैरह भी है. वो इफ यू हैव नॉट स्पोकन ऑफ, तो मसाज थेरेपी भी है. एनीवे, अब मुझे फार्माकोलॉजिकल मेथड्स बताओ. Ma'am, pharmacological methods include administration of systemic opioids or inhalational analgesia, regional anesthesia, including spinal epidural or CSE. और कुछ, और कोई रीजनल जानते हो बेटा? Ma'am, then there is this patient-controlled analgesia, नहीं, walking epidurals. वो नहीं बेटा, वो तो एपिड्यूरल की हेडिंग में आ गया. एक हो गया आपने बोला एपिड्यूरल, एक बोला आपने स्पाइनल, एक आपने बोला कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल, और कुछ? ड्यूरल पंक्चर एपिड्यूरल. Yes, ma'am. ड्यूरल पंक्चर एपिड्यूरल, विल कम टू Nerve इट. blocks, एंड नर्व ब्लॉक्स. कौन से नर्व ब्लॉक्स? pudendal nerve block, ma'am, and paracervical nerve block. एंड व्हाट एल्स? And lumbar sympathetic. ma'am, that will come under spinal only. नहीं, रीजनल ब्लॉक में लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक एक अलग है ना. वो सिंपैथेटिक ब्लॉकेड आप वैसे कर रहे हो, एक लंबर सिंपैथेटिक अलग तरीका है नॉन स्पाइनल से पैरावर्टिब्रल अप्रोच से देने का. ठीक है. Yes. तो वो फिर पैरासर्वाइकल, प्यूडेंडल. ठीक है, ये भी आपको बताना है. ठीक है. Yes. अच्छा, और पेरिनियल, वो जो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, पेरिनियल हो गए. Local. Okay, so all right, now inhalational, you said were inhalational में क्या देते हैं लेबर एनाल्जेसिया में? Ma'am, the most commonly used inhalational method, inhalational agent is Antonox, ma'am. क्या है वो? Ma'am, Antonox is used at the beginning of each uterine contraction. First, tell me what is it? Ma'am, Antonox is a pain-relieving gas mixture, ma'am.
it consists of two gases. 50% is nitrous oxide, ma'am, and 50% is oxygen. Ma'am, it is commonly known as mixture of gas and air, and ma'am, it is delivered Mixture by of hand. gas and air क्या बोल रहे हो यार? Entonox is a 50:50 volume by volume Yes, mixture of oxygen and nitrous oxide. nitrous oxide and oxygen. अब ये एयर कहाँ से बोल दिया तुमने यार? ये तुम अपना वाइवा मत खराब करो रोहन, अभी तक ठीक चल रहे हो, कोई भी अटपटी चीज मत बोला करो। अब जब तुमने बोल दिया सिलेंडर में मिक्सचर है टू गैसेस का 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, खत्म हो गई। अब एयर कहाँ से आ गई? ठीक है, फिर Yes, आगे बोलो। ma'am, it is administered at the beginning of each uterine contraction with the help of handheld devices via a mouthpiece, ma'am. अच्छा, तुम्हें ये एनबी कौन है? एनबी ने ये तो निवेदिता है। एसके सतीश Oh, yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट इज पॉइंटिंग इफेक्ट? अब भगवान के लिए ये क्वेश्चन लिखो, पॉइंटिंग इफेक्ट पूछेंगे तुमसे, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, इक्विपमेंट वाइवा में भी है। जहां पर भी नाइट्रस ऑक्साइड की बात है वहां पे पॉइंटिंग इफेक्ट पूछा जा सकता है। हाँ बोलो, क्या होता है? Ma'am, I don't know, ma'am. I don't know about bonding effect, ma'am. ओके देन एन कौन है? नेहा, पॉइंटिंग इफेक्ट बताओ। हेलो मैम। पॉइंटिंग इफेक्ट क्या होता है? हेलो मैम। हेलो। आई डोंट नो मैम। मान्या, ममता। Yes, ma'am. Pointing effect. Hello. Good evening. Sorry, ma'am. I don't know. Acha, is there anybody who knows pointing effect? If you don't know, you have to know. देखो मैं बताती हूँ, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को जब हम मिक्सचर रखते हैं, ठीक है, तो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज above -6 डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है, बट इफ द टेम्परेचर गोज लेस देन -6 डिग्री सेंटीग्रेड तो व्हाट हैपन्स इज कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो लिक्विडेट हो जाती है, ठीक है, एंड ऊपर ऑक्सीजन स्टेज एज गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गेट्स लिक्विडेटेड, और फिर क्या होता है, इनिशियली बंदा जो है सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करेगा, और बाद तो उस वक्त तो उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसको सिर्फ ऑक्सीजन है, हार्डली कोई नाइट्रस है उसमें, और बाद में उसको ऑलमोस्ट 100% नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो यू शुड स्टोर इट, पॉइंटिंग इफेक्ट में मतलब नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर्स अबव -6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर -6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा टेम्परेचर तो देयर कैन बी सेपरेशन। अब ये पॉइंटिंग इफेक्ट को प्लीज, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, पॉइंटिंग इफेक्ट, ये दोनों आप अच्छे से पढ़ोगे, ढूंढो, अंडरस्टैंड, नो इट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। डू यू और डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर equipment viva or in any viva wherever you deal with gases, ठीक है? क्या हुआ बेटा, रिस्पॉन्ड तो करो, इसीलिए तो मेरे को ये अच्छी नहीं लगती है क्लासेस, पता ही नहीं चलता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता। Okay, ma'am. Okay, so you understood what I'm saying? Yes, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा पूनम, अब आप ये बताओ बेटा, व्हाट वुड बी एन आइडियल एनाल्जेसिक फॉर लेबर, आइडियल ड्रग फॉर लेबर एनाल्जेसिक? Ma'am, ideal analgesia would be, ma'am, Neuraxial block, ma'am.
मैंने कहा what are the ideal properties, what is the ideal labor analgesia drug? So you are supposed to say कि an ideal drug is a drug which is safe for both mother and the fetus. It provides quick onset. ऐसे करके बताओ points of an ideal analgesic. बताओ पूनम. Ma'am, an ideal analgesia, firstly, it should be easily available, ma'am. बोलते जाओ. I'll stop you अगर मेरे को कुछ बात. It should be easily available. It should be safe for both mother and fetus, and the onset should be rapid, and there should be less need of repeating analgesia, ma'am. It should be ideally prolonged, ma'am. बोलते जाओ. Now, it should have less systemic effect to the patient, to the mother. And there should be patient satisfaction. वो कैसे होगी? And it should not. Patient satisfaction कैसे होगी? कैसे होगी patient satisfaction? Ma'am, it should be acceptable that we should confirm to the patient that the analgesia which we are giving, is it providing proper pain relief to the patient or not, ma'am? बेटा आप ना please, you should not digress from the topic. Please try and stay focused. तुम्हारा focus क्या है? What is an ideal drug? आइडियल ड्रग बताओ कौन सी होनी चाहिए. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ड्रग, जो या मेथड जिससे हमारे लेबर एनर्जीजिया में यूज होना चाहिए. तो उसमें आपको आइडियल प्रॉपर्टीज या आइडियल लेबर एनर्जेसिक ड्रग में आपको चीज़ें क्या पॉइंट्स कवर करने होंगे. पहली बात, इट शुड बी सेफ फॉर बोथ मदर एंड फीटस. ठीक है. इट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर. इट शुड हैव an early onset. It should be more, should have a predictable response. ये नहीं कि पता नहीं जी आएगा नहीं आएगा effect. ठीक है. It should provide analgesia for all stages of labor. It should not have any motor blocking effect. ठीक है. It should not prolong the labor. It should retain the maternal expulsive effect. ये नहीं कि mother वो ही नहीं कर पा रही है. It should facilitate delivery. It should have a high technical success. It should not interfere with progress of labor. It should provide consistent pain relief. It should have minimal side effects. Now, this is another question which can be asked. Okay? Okay, ma'am. ठीक है? Okay. Okay. फिर अच्छा, मान्या. यस मैम. अच्छा, इससे पहले मान्या मैं क्वेश्चन पूछूं. एक और मैं क्वेश्चन बता देती हूँ जो तुम्हें आ रखा है एग्जाम में. फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लेबर बता दिया था, ये बता दिया लेबर पेन का. अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी आता है तुम्हें कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैरासर्वाइकल एंड प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक्स इन ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया. ये भी 10 मार्क्स क्वेश्चन है. पैरासर्वाइकल और प्यूडेंटल ब्लॉक तुमने सोचा भी नहीं होगा. इसके ऊपर एक 10 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे. ठीक है. ये भी आया हुआ है. ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना रही हूँ, ये तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक है.
और एक आया हुआ है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ कॉर्डल एपिड्यूरल स्प्रेस एंड टेक्निक ऑफ कॉर्डल एपिड्यूरल ब्लॉक। ये इसका इतना रेलिवेंट नहीं है इस टॉपिक को, पर वैसे मतलब कॉर्डल के ऊपर भी डायग्राम बनाओ और वो सब आया हुआ है क्वेश्चन, तो यू शुड नो। ओके अच्छा, अब एक हाँ मान्या, अब बताओ मुझे, अब न्यूरैक्सियल टेक्निक्स के बारे में बताओ, कैसे करते हैं, क्या है, टेल मी अबाउट द डिटेल्स फॉर लेबर एनालिसिस। In neuralgial techniques, we can opt for epidural block, combined spinal epidural, or subarachnoid block. And एक और भी होता है, अभी हमने बात करी थी, lumbar sympathetic block. नहीं वो तो न्यूरैक्सियल नहीं। हाँ नहीं बेटा, पैरासर्वाइकल तो रीजनल ब्लॉक्स हैं। ड्यूरल पंक्चर एपिड्यूरल ब्लॉक, डीपीई, ड्यूरल पंक्चर उसमें कंबाइंड स्पाइनल में तो करते हो कि आप सबएरेक्नॉइड स्पेस को पंक्चर करते हो, ड्रग देते हो, है ना, स्पाइनल में ड्रग देते हो और फिर एपिड्यूरल में कैथेटर डालते हो, फिर बाद में एपिड्यूरल से देते रहते हो, ठीक है। पर ड्यूरल पंक्चर एपिड्यूरल में आप बस सिर्फ ड्यूरा को पंक्चर करते हो, उसमें दवाई ववाई नहीं डालते, और बस एपिड्यूरल में आप करते हो, यही होप करते हुए कि थोड़ी सी ड्रग जो है वो उस छेद में से थोड़ी थोड़ी अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरल पंक्चर एपिड्यूरल इज अनदर टेक्निक, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लिखो ड्यूरल पंक्चर एपिड्यूरल। अच्छा, अब बताओ मुझे कैसे देते हैं एपिड्यूरल ब्लॉक, कैसे देते हो? The procedure, ma'am. हाँ सब बता दो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, पूछते भी हैं हम। Epidural block is ideal for second stage of labor, ma'am. We can use local anesthetics in a high volume but a low concentration. For example, we can use bupivacaine for. एक बात बताओ माने, यू तो बिगिन ही गलत कर रही है बेटा, क्यों सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्यों नहीं दे सकते? कब देते हैं एपिड्यूरल, कब देते हो लेबर एनाल्जेसिया? देना चाहिए। When should you initiate labor analgesia? Sorry, ma'am. I was confusing it with the subarachnoid block. No, I was confusing it with some other block, ma'am. It is ideal for the first stage of labor, and we can use high volume at low concentration local anesthetics. गलत है, okay, it is ideal for first stage of labor. It can be given for both first and second stage of labor, in fact cesarean के लिए भी, है ना। तो कभी भी don't put your foot into your mouth. So you say कि epidural block is a good analgesia and it can be given when, वैसे एक बात बताओ, when do you institute labor analgesia? At what time do you start labor analgesia? Is there any particular time that you should give initiate labor analgesia? Ma'am, it depends on the kind of the neuralgial block we are administering. मैंने एपिड्यूरल बोला है, काइंड तो मैंने बता दिया। एपिड्यूरल में मैम when the for multigravida women if the cervix is dilated 3 to 4 centimeter, and in primigravida women the cervix is dilated 5 to 6 centimeter. ये क्या बात हुई? ये कहाँ मिला तेरे 5 to 6 centimeter और 4 to 5 centimeter? मतलब अगर 2 सेंटीमीटर है, वो दर्द में मरी जा रही है, तो फिर तुम वेट करोगे कि जब तक 4 नहीं होगा हम नहीं दे, बेटर है। Ma'am, if we are administering local anesthetics through the epidural catheter, in that case. हाँ तो एडमिनिस्टर ही करेंगे बेटा, लोकल एनेस्थेटिक ही देंगे। तो एपिड्यूरल में और क्या देना है? Opioids. तो ओपियोइड्स अलोप्लेन देते हैं एपिड्यूरल में? मैम फेंटेनिल एंड सुफेंटेनिल दे सकते हैं? बिल्कुल देते हैं, दे नहीं सकते, देते हैं, बट यू गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एंड ओपियोइड, isn't it? 0.06 to 5% of bupivacaine with 1 to 2 mics per kg per minute of ये fentanyl वो डालते नहीं हो? Yes, ma'am. हाँ?
फिर बता मुझे, तो तुम कब you will wait, you will keep measuring कितना dilatation हो गया तब दोगे. Labor analgesia is the prerogative of the woman. You will provide irrespective of the stage of labor that she is in. Matlab, irrespective of the cervical dilatation, if the woman demands analgesia, you will give analgesia. Okay? Even if she is 1 centimeter or 2 centimeters. अगर उसको requirement है तो आप दोगे. ठीक है? Yes, ma'am. All right. चल आगे बता. Ma'am, should I tell subarachnoid block now or continue with epidural? मैंने पूछा है तो subarachnoid भी मत. Okay. नहीं, ठीक है. Ma'am, also, ma'am, in epidural block, while we are administering it in field labor, we don't give a test dose that consists of ADR because ADR acts as a topulator. So we only aspirate and check if it's in the epidural space. हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलेंगे कहीं से भी. अभी आपको एक पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना है, एपिड्यूरल ब्लॉक देना है फॉर लेबर एनाल्जेसिया. ठीक है? सो हाउ यू विल गो अबाउट इट? हाउ यू विल गो अबाउट इट? First, you will evaluate the patient. We will identify. Take a focus history. Yes, ma'am. We'll take informed consent. Yes, ma'am. Yes, you will take a informed consent. If she wants, you will take an informed consent. You will evaluate the patient. Take a focus history examination. फिर क्या investigations करोगे बताओ? करोगे? Yes, we'll check the relevant lab investigation like CBC, PT-INR. CBC में we'll focus on the platelet count and we will check. Platelet count नहीं हुआ हुआ. Patient wants labor anesthesia. You will say कि पहले platelet कराओ उसके बाद आना. Routine platelet count BGCM is not necessary. Okay? ये देखो सुनो मेरी बात. ये ASA के टास्क फोर्स और ये 2015 ये प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया की. ASA अमेरिकन सोसाइटी की ये ASA टास्क फोर्स की प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं फॉर ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया. लिखो ये भी, पढ़ो ये टास्क फोर्स की गाइडलाइंस. ठीक है? एक तो उसमें ये नहीं करते. उसके बाद फिर उसको आपको पहले इनिशिएट करने से पहले बिफोर एंड आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग आपको फीटल हार्ट रेट जरूर सुनना है. ठीक है? And ma'am, a peripheral IV access has to be secured, and we have to apply the monitors. The monitors the heart rate, BP, and the saturation. Very good. And also you have to your equipment ready. Check our yes, ma'am. Check the equipments. And then, ma'am, then after that we will identify the relevant space in which we have to administer the epidural block. So we'll focus on the T10 to L1 level. If the patient is experiencing uterine contractions pain. बेटा आप L1 L2 पे भी डाल करके ऊपर ड्रग दे सकते हो ना, है ना? दे सकते हो. वरना वैसे जैसे होता है कि आप लोअर thoracic अपर प्लम्बर में दे दो पहले इनिशियल स्टेजेस में और फिर नीचे S2 S3 S4. मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट डबल कैथेटर टेक्निक. वो डबल कैथेटर टेक्निक होती है जिसके अंदर हम आइसोलेटेड ब्लॉक होते हैं. यहाँ पे आप एक ही एपिड्यूरल लगा रहे हो. ठीक है? अच्छा, एक सेकंड. चलो बोलो, बोलते जाओ. कीप ऑन स्पीकिंग. Ma'am, then we can administer the epidural using the loss of resistance technique to air. And once we reach the epidural space using this technique, and we thread the epidural catheter. We fix it at the required length. And after that, before that, we aspirate and check if there's any aspiration of blood or CSF. And after that, we fix the catheter. And we omit the test dose in this particular case.
and देखो टेस्ट डोज का ना ऐसा है कि बेटा टेस्ट डोज का एक कंट्रोवर्सी डेफिनेटली था कि सम से कि आप एस्पिरेट ही कर लो, उसमें आ जाता है 98% आ जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है देने की। दूसरा ये है कि इतने हम डाइल्यूट लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट आप एपिड्यूरल टेस्ट डोज बोलो, क्योंकि आप जैसे अगर आप चेस्टनट देखो तो उसमें जो सजेस्टेड प्रोसीजर ऑफ इनिशिएशन है उसके अंदर दे राइट दैट यू गिव द टेस्ट डोज आल्सो, but you can always say that there is a controversy, it is a bit of a controversy about giving the test dose, because एक तो एपिनेफ्रिन का इफेक्ट यही है कि वो एपिनेफ्रिन देने से यूट्राइन वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वो प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम टेस्ट डोज देते हैं वो हम 3 ml दे देते हैं, उससे हमारा जो है अगर मोटर ब्लॉकेट वगैरह हो जाता है तो वो वॉकिंग एपिड्यूरल में हमें दिक्कत आती है, ठीक है। बट आप टेस्ट डोज का कंट्रोवर्सी क्या है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है, बट आई थिंक अगर बोले तो बोलो आई वुड लाइक टू गिव अ टेस्ट डोज स्टिल, ठीक है। हम लोग हमेशा देते हैं ना टेस्ट डोज। yes ma'am. हाँ, और चेस्टनट में भी लिखा हुआ है, अगर आप चेस्टनट में का एक चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है, उसका टेबल है बॉक्स 23(4), जिसके अंदर आपका आराम से उसने पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं आप कैसे दोगे, तो उसमें टेस्ट डोज के बारे में लिखा है। तो यू शुड डेफिनेटली नो कि उसकी कंट्रोवर्सी क्या है टेस्ट डोज की। और यूजुअली कितना कैसे ड्रग देते हैं इसमें, कितना ड्रग देते हो? Ma'am, bupivacaine in a concentration of 0.065 to 0.125%, में we can give ma'am 1.5 to 2.5 mg. Yeah. 8 to 15 ml, ma'am. 8 to 15 ml. तो यार एक सेकंड मुझे काम करो, तुम 5 to 10 ml 8 to 12 ml जो भी है उसको आराम से ढंग से बात कर अपना बताओ पॉइंट्स, फिर और क्या करोगे बताओ, और क्या दोगे उसमें? फेंटेनिल बताया आपने? We can add adjuvants like fentanyl. हम fentanyl add सिर्फ 0.06 to 5% दोगे तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा। Up to 25 micrograms, ma'am, fentanyl. 12.5 to 25 micrograms. And we can also add clonidine. नहीं, क्लोनिडीन तो यूएस एफडीए अप्रूव ही नहीं करता है ऑब्स्टेट्रिक में देने के लिए। क्लोनिडीन और डेक्समेड को वो अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं एफडीए। तुम सिर्फ फेंटेनिल और सुफेंटेनिल की बात करो, ठीक है? मैम, कैन वी ऐड नियोस्टिग्मीन? नहीं, कुछ खास बकवास ड्रग है, डालने को कर सकते हो, पर यह है कि नियोस्टिग्मीन जो है बहुत ज़्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करता है। देखो तुमसे वाइवा में पूछेंगे तो तुम अपना बोलो लोकल एनेस्थेटिक विद ओपियोइड कॉम्बिनेशन बताओ। हाउएवर देयर आर सर्टेन अदर मेडिकेशंस लाइक नियोस्टिग्मीन व्हिच कॉज अ लॉट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो वो इंट्राथीकल तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। एपिड्यूरल में कई बार लोग दे देते हैं, बट इतनी कुछ खास बड़ी ग्रेट नहीं है। अगर तुमसे वाइवा में कोई पूछे कि भाई तुम क्या दोगे, तो तुम तो एपिड्यूरल में फेंटेनिल देते हो, तुम उसी की बात करो, है ना? जो तुम करते हो ना वाइवा में वही बोलो, आलतू फालतू मत बोलो, ठीक है? पर पता तुम्हें होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है? हाँ, फिर क्या रेट दोगे, कैसे दोगे? कंटिन्यूअस एपिड्यूरल दोगे, इंटरमिटेंट बोलस दोगे, कैसे देते हैं बताओ? We can give it on the basis of, ma'am, the patient's demand, or we can give it as an infusion, bupivacaine. So, ma'am, if you're giving boluses, then देखो बेटा, आप जैसे भी अगर आपसे वाइवा में पूछे ना आपने क्या देना है, आपने एपिड्यूरल ब्लॉक अगर आपको लगाना है तो आप उसका पूरा टेक्निक बताओगे कि I will have my anesthesia, I will have my machine ready, resuscitation equipment ready, I will have all my resuscitation drugs ready, I will do a focus history examination, I will
secure and vascular access, start an IV fluid. उसके बाद आपने अपना clean drip sterile technique से I'm going to site an epidural catheter. I'm going to give this testosterone. I will give 5 to 10 ml या 10 to 15 ml आप आगे बढ़ा ही सकते हो ना of 0.06 to 5% protein with कितना आपने fentanyl डाला है 1 mic per kg वो या 2 mics वाला के हिसाब से आप अपना बताओगे, ठीक है. Then you will assess every 2 to 5 minutes you will assess for the first 15 to 20 minutes you will assess for the hemodynamics को करो. उसके बाद आप हर आधे घंटे बाद देखोगे उसके hemodynamics, है ना. इस तरह से करोगे. अच्छा, अब टेक्निक्स क्या आ सकते हैं, आप या तो कंटिन्यूअस एपिड्यूरल्स दे सकते हो थ्रू एन इन्फ्यूजन पम्प, या फिर आप उसको इंटरमिटेंट बोलस डोजेस दे सकते हो, है ना, या फिर, है ना, या फिर आप उसको कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग दे सकते हो, या पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया के बारे में बात कर सकते हो. नाउ दीज आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन गिव. ठीक है, तो एक अपना ड्रग देख लो, एक अपना टेक्निक देख लो. ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज वॉकिंग एपिड्यूरल. यस मैम. क्या है Ma'am, walking epidural is when we have administered the combined spinal epidural technique in the pregnant female, and and we have to make spinal epidural. Yes, ma'am. For the initial intense analgesia, we give local anesthetics through the subarachnoid block, ma'am, and then later we give administered drugs in the epidural catheter. वो वॉकिंग हो गया. नहीं, वॉकिंग एपिड्यूरल में वी हैव टू, देयर आर क्राइटेरिया फॉर अ पेशेंट टू बी मेड एम्बुलेटरी. नहीं, ये रहने दो बेटा, ये ऐसे नहीं बोलोगे वॉकिंग एपिड्यूरल इज कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल इज वॉकिंग एपिड्यूरल, है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाट इज वॉकिंग न्यूरैक्सियल एनाल्जेसिया, कौन बताएगा मुझे. एलसी कौन है यार, ये एलसी कौन है. ललित बताओ बेटा, व्हाट इज वॉकिंग एपिड्यूरल. In walking, we use minimal motor blockage. हाँ. With analgesia. बेसिकली बेटा मान्या, बेसिकली व्हाई आई स्टॉप्ड यू वाज कि आपके आंसर देने से लग रहा था कि कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज वॉकिंग एपिड्यूरल. नहीं, वॉकिंग एपिड्यूरल में इट इज प्रोवाइडिंग न्यूरैक्सियल एनाल्जेसिया such that there is a sensory effect is there and there is minimal motor block. ठीक है, so ability to walk is not impaired because motor function is not impaired. So walking इसीलिए बोलते हैं क्योंकि motor retained है. ठीक है, इसलिए नहीं बोलते कि CSE दिया है. CSE दे के भी नॉट वॉकिंग हो सकता है, बट वॉकिंग का मतलब यह है कि हमने मोटर ब्लॉक जो है नहीं किया, सेंसरी ब्लॉक किया है और मोटर ब्लॉक नहीं किया. ठीक है, फिर वॉकिंग एपिड्यूरल में आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट सपोज यू हैव गिवन अ वॉकिंग एपिड्यूरल और वॉकिंग न्यूरैक्सियल एनाल्जेसिया दे दिया आपने, CSE दे दिया, लो डोज CSE दे दिया, या जो भी किया आपने, ठीक है, वॉकिंग एपिड्यूरल किया है. अब मुझे बताओ व्हाट विल यू सी प्रायर टू एम्बुलेशन. तो बोलोगे तुमको तो हमने वॉकिंग एपिड्यूरल दिया है, जाओ चलो गो यू कैन वॉक अराउंड. इज इट सो? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, prior to mobilizing the patient, we have to check if there's a maternal desire. There are no obstetric contraindications. We have to do the straight leg raising test for more than 10 seconds. If the patient can do that, we can mobilize her. And there's also partial knee bends at the bedside. And also, less than 10% change in the BP after the patient rises up from the supine position and starts walking. There has to be minimal change in the BP. तो orthostatic hypotension नहीं है उसको. Fetal status is reassuring. That means उसका FHS ठीक है, fetus engaged है, उसका she is able to do straight leg raising with against resistance.
फिर एक स्टेप अप टेस्ट भी होता है कि एक स्टेप स्टूल के ऊपर शी पुट्स वन स्टेप एट अ टाइम, राइट? Step up on a Yes, ma'am. step stool Step with up. either leg, right? And then she's can give a satisfactory trial with a nurse, and she should always be accompanied by a companion when she is walking. ये नहीं कि हमने walking epidural दिया है, you go around walking, ठीक है? So you have to be this thing, ठीक है? And when the moment somebody says walking epidural, मान्या I agree, तुम low dose CSE opioid analgesia देते हो walking epidural में, बट आप ये नहीं बोलोगे हमने CSE दे दिया. यू हैव टू से मोटर ब्लॉक नहीं, मोटर प्रिजर्वेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वॉकिंग एपिड्यूरल, है ना? Yes. Okay. Then what are the other problems of say you are giving combined spinal epidural और तुम ये neuralgial block दे रहे हो, and supposing your patient has vascular absorption and there is local anesthetic systemic toxicity, तो उसको कैसे treat करोगे? How will you treat that? Ma'am, first we will तुम रहने first दो, we will तुमने check. बहुत बोले. Wait. You have said quite a lot. You just leave it. Let somebody else. Ramanathan, बेटा आप बताओ. How do you manage an unintentional intravascular injection of local anesthetic? Hi, Ramanathan. Yes, ma'am. How will you manage unintentional local anesthetic, intravascular local anesthetic administration? Ma'am, I'll give lipid emulsions. बस ऐसे शुरू हो गए. You give lipid emulsion. इस सारे क्वेश्चंस वाइवा में हर जगह पूछे जाते हैं बेटा. कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहला स्टेप, कॉल फॉर हेल्प. सेकेंड, पोजीशन योर पेशेंट, ठीक है, विद लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट. प्रिपेयर क्विकली फॉर इमरजेंसी. 100% ऑक्सीजन. You may need to give positive pressure ventilation and intubate the patient. Then उसको convulsions हो रहे होंगे तो you may need to give this benzodiazepine 2 dose. Then to stop the seizure. उसके बाद then you will say कि vital signs वगैरह देखोगे, advanced life support की तरह देखोगे. You may need to give lipid emulsion. ठीक है, जैसे ही होता है तो आप उसको call for help से शुरू करो. ठीक है? Yes, ma'am. अब बताओ, अब कितना लिपिड एमल्शन दोगे, कैसे दोगे बताओ? अब ये तो ना तुम्हारा कोई भी स्पाइनल एपिड्यूरल का कोई भी रीजनल टेक्निक, कहीं पर कुछ भी नर्व ब्लॉक होगा उसमें तुम्हें हाउ टू हैंडल लास्ट आएगा. वो तो ये तो है नहीं कि तुम्हें सिर्फ लेबर एनाल्जेसिया में पूछा जाएगा. ये तो तुम्हें कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं. Yes, ma'am. और फिर I'll give 20% lipid emulsion. हाँ. At 1.5 ml per kg. ठीक है, कितनी देर में? Initial bolus is 1.5 ml per kg. Over 1 minute. I will repeat it. Followed by infusion दोगे ना बेटा, एक बार बोलस देके. Yes, ma'am. 0.25 ml per kg after 30 to 60 minutes. बेटा you will give 0.25 ml per kg per minute का continuous infusion दे दोगे. Per minute. Till 10 minutes of cardiovascular stability. ठीक है, तब तक देते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं. तो ये सब आपको प्लीज ये मालूम होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक और नेक्स्ट न्यूरैक्सियल्स को लेकर के, एक अगर आपका लेवल हाई चला जाए तो हाई स्पाइनल चला जाए या वो है तो उसका भी आपको कुछ पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू मैनेज. ठीक है.
So these are the important questions. Let me just see if I missed out on anything. ठीक है, और हाई और टोटल स्पाइनल हो जाए तो कैसे मैनेज करेंगे? वर्षा, how do you manage high or total spinal? Hello. Yes, ma'am. अब यार ये ना फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है ना? अब मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया जस्ट टू कंप्लीट इट, और तुम ऐसे कर रहे हो कि अब तुम अगर मुझे ये नहीं बता सकते कि हाई स्पाइनल में क्या करोगे तो फिर मैं अब क्या बताऊंगी? बताओ Ma'am, we'll secure the air. We'll secure our airway. We'll check the patient's vital and ma'am, secure the airway, check the patient's vital, assess the patient's hemodynamic status. If the patient needs inotropes, we'll start the inotropic infusion. We'll give IV fluid bolus. ठीक है बेटा, जो भी कुछ है आपको हमेशा प्रेग्नेंट पेशेंट की कोई भी रिसस्टेशन हो तो तुमको प्रिवेंट आयोटो केबल कंप्रेशन नहीं बोलना, 100% ऑक्सीजन नहीं बोलना, ठीक है, और कॉल फॉर हेल्प नहीं बोलना, और मेंटेन वर्बल कम्युनिकेशन। हाई स्पाइनल में मेंटेन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू आउट विद द पेशेंट, रीअश्योरमेंट, एंड देन आप अपना वो सब देखोगे और फ्लूइड रिसस्टेशन करोगे, मॉनिटर करोगे, वाइसोप्रेसर देने की जरूरत पड़ेगी तो वो दोगे, है ना? चलो ठीक है। एनीवे, अच्छा अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको और प्रिपेयर करना है, जिसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज ऑन रीसेंट एडवांसेस। व्हाट आर द रीसेंट एडवांसेस इन लेबर एनाल्जेसिया? बताओ, कोई बताएगा मुझे? बसवराज, आप बताओगे बेटा रीसेंट एडवांसेस? कोई पूछेगा तुमसे, राइट अबाउट द रीसेंट एडवांसेस इन लेबर एनाल्जेसिया, ये भी क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस वी एंड आवर ट्यूटोरियल। बताओ। हेलो मैम, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया and programmed intermittent epidural bolus, ma'am. यूज ऑफ पीसीए, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, और क्या बोलोगे बेटा? एक बच्चों एक ना, ऑलराइट, एनीवे I'll tell you. देखो, when you get this recent advances, तो एक आर्टिकल भी आया हुआ है on recent advances। मैं जस्ट अभी ये पॉइंट्स बता करके तुम्हें बताती हूँ। 2 आर्टिकल्स पढ़ लो। एक तो ये है लेबर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये है हमारा इंडियन जर्नल ऑफ पेन में आया हुआ है। ये तो खैर 2014 का है, सॉरी, एक सेकेंड, एक और आर्टिकल है, जस्ट मिनट। ओके, यू नो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट इट इन द ग्रुप, ठीक है? एक आर्टिकल है, उसका डिटेल मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वो देख लेना रिसेंट एडवांसेस के लिए। और अदरवाइज एक इंडियन जर्नल ऑफ पेन का भी आर्टिकल है, उसमें भी कुछ कुछ रिसेंट एडवांसेस हैं जो विच यू शुड नो। आर यू एबल टू हेयर मी? सुनाई दे रहा है? अच्छा, तो उसमें एक तो है बेटा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड पेशेंट कंट्रोल्ड एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड में क्या होता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा होता है कि जो पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया होता है ना, वो उसको देखता है कि पिछले 1 आवर में
उसने कितने बोलसेस लिए हैं, क्या है, और उसको देख करके वो जो कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन है उसको रीसेट करता है, ठीक है। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मान लो जो आपने कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन रेट सेट किया है वो इनएडिक्वेट है, तो बार बार पेशेंट विल कीप ऑन टेकिंग बोलसेस ना ऑफ एनाल्जेसिया, तो वो ये देखेगा ओके इसने 4 बोलस लिए, इसका मतलब जो हमारा इन्फ्यूजन रेट है उसको ये नहीं ये होना चाहिए, एंड इट विल रीसेट इट। तो basically it's a computer program which will automatically adjust the background infusion requirement depending on the requirement in the last 1 hour, ठीक है। तो एक तो ये होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। फिर एक होता है हमारे पास होते हैं प्री प्रोग्राम्ड इंटरमिटेंट बोलसेस। एक तो होता है ना इंटरमिटेंट बोलसेस हम दे रहे हैं, दूसरा है कंप्यूटर में ही हमने प्री प्रोग्राम कर दिया है कि इट विल गिव इंटरमिटेंट बोलसेस। उसके बाद अनदर रिसेंट एडवांस विच यू कैन और रादर यू नो यू शुड टॉक अबाउट इज this use of ultrasound कि in not only identifying the space and proper technique, उसके साथ साथ आपके पास कुछ epidural needles भी आती हैं which have optic guided fibers, optically guided epidural needles. Then you have special needles like epidural जिसमें एक needle और syringe के बीच में ना एक वो होता है एक diaphragm सी चीज़ होती है कि जैसे ही स्पेस आता है तो इन्फ्लेटेड डायफ्राम कोलैप्स कर जाता है, जैसे फिर एक आता है हमारा एक एपिशोर करके आता है, एक स्प्रिंग लोडेड सिरिंज होता है। तो द मोमेंट दैट सिरिंज इट्स अ कोएक्सियल थिंग and the spring is putting constant pressure on the plunger, and the moment you reach the epidural space it will plunger will move in, तो you get to know कि ये आपका epidural space पहुंच गया है। Another thing is that you have these highly sophisticated smart pumps which have both they have their incorporated algorithms and libraries of drugs and concentrations and dosing units. So these smart pumps are there. So all these can come as the recent advances for labor analgesia. ठीक है। अच्छा, अब now I think this is all which I thought could come for your exams. तो मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठे किया है। Now the only thing that I think I need to tell you is that I will give you the detail of these 2 articles. इनमें आप recent advance वगैरह पढ़ लो तो I think it will help you out, ठीक है। मैं आपको आपके ग्रुप में डाल देती हूँ। So would that be all right? Yes ma'am. ठीक है। हाँ या एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट में मिनिमाइज करो जरा, मैं देखती हूँ अगर ये मेरा डेस्कटॉप पे ही मेरे को मिल जाता है तो आई जस्ट टेल यू राइट अवे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो रिसेंट एडवांस होगा ना ये आपको और भी चीज़ों में काम आएगा। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सब अभी पता नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक मैं आपका उसी में डाल दूंगी, ठीक है। मैं आई विल पुट इट इन द ग्रुप टुडे। सो आई थिंक सो लेट अस कॉल इट अ डे। डज एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? डज एनीबडी वांट टू आस्क? हाँ मैम दिस इज अंकुश। मैम एक जो डबल एपिड्यूरल वाला टेक्निक था वो होता कैसे है? कहीं मिला नहीं मुझे। अरे वो भी इसमें दिया हुआ है, वो कुछ नहीं है बेटा, वो बेकार सी चीज़ है। वो ये है कि एक हायर लेवल पे आप कैथेटर डाल दो और दूसरा कैथेटर जो है कॉर्डल एपिड्यूरल स्पेस में डाल दो, ठीक है। तो वो भी है इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, बट आई विल सेंड दैट टू यू, ओके, सो यू कैन सी दैट। थैंक यू। आई विल सेंड दैट टू यू, डोंट वरी अंकुश। वो मैं आपको ये डबल कैथेटर टेक्निक भी इस आर्टिकल में है, राइट? Okay, so I'm going to give you the details of 2 articles and I'm sure they will answer all your help you out, तो वो आप ज़रूर पढ़ लेना। and बाकी जो मैंने तुम्हें कुछ पॉइंटिंग इफेक्ट और ये फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स और ये सब कुछ important questions बीच में बताए हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर देखना। और वॉकिंग एपिड्यूरल में कैसे करना है, उसको वॉकिंग एपिड्यूरल क्यों कहते हैं, ठीक है।
और क्या क्राइटेरिया है टू अलाउ हर टू वॉक, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस आई थिंक वी एंड इट, एंड मैं आपको ये भेज दूंगी, डोंट वरी, आई विल सेंड इट टुडे इटसेल्फ, ठीक है। ओके देन, थैंक यू मैम। ओके बाय। Thank you, ma'am. ओके बाय। Thank you, ma'am. ओके बाय, वेलकम वेलकम। Thank you, ma'am. हाँ, ओके बाय, थैंक यू। Thank you, ma'am.